of energies of orbital today. And see, you can see on the screen that I have made the notes for you. And the first topic of discussion today is energies of orbitals. So you know that Bohr's concept of atomic model was discarded because of quantum mechanical model, which was based on two concepts. One was dual nature of matter. It considered dual nature of matter. So on the basis of that, the concept of orbit was discarded and the new concept of orbital was included. So you know that what is an orbital? Orbital is the region around the nucleus where probability of finding electron is maximum. So on the basis of the quantum numbers, we were able to find out the address of the electron. So the energies of different orbitals depends upon certain factors, and we are going to see what factors are responsible for energy of orbitals. So the first point here is energy of an orbital in case of hydrogen atom. See, here we are talking about hydrogen atom in this case. So in case of hydrogen atom, it mainly depends upon the principal quantum number. You know that principal quantum number is given by small n. So in case of hydrogen atom only, it depends upon principal quantum number. That means if the electron is in 1s, then its energy will be lower in comparison to 2s. So as the value of n increases, the energy of the orbital, energy of the electron will also increase in case of hydrogen atom, because hydrogen atom is a unique case because it has got only one electron. But why other system that you consider, they are all multi-electron system, and they have got different rules for determining the energy of orbitals. So in case of hydrogen atom, you can see that the energy of the orbital depends only on the principal quantum number. So as the value of n will increase, so will be the energy of the orbital. Now another term that you will often come across is ground state. What do you mean by ground state? The lowest energy state of an electron is known as ground state. So in case of hydrogen atom, you know that the lowest orbital is 1s. So when electron is present in 1s, we will say that the system is in ground state. But when energy is absorbed by that electron will jump from 1s to any other higher energy shell that depends upon the energy absorbed by the electron. So in that case, when electron absorbs energy, it moves to higher energy shell and it is called in excited state. So whenever you come across the word excited state, it means that electron is in higher energy state and not in its original energy state. Now another word that is degenerate. What does degenerate means? Degenerate means orbitals having same energy are said to be degenerate. So whenever we say that orbitals are degenerate, it means that the energy of the orbital is equal. So degenerate or degeneracy means equal energy. Now we will be talking for multi-electron system. Multi-electron system. I'll continue. Now we talk about multi-electron system. Multi-electron system means a system which has got more electrons in it, more than one electron. So besides hydrogen, every system that you will be studying is a multi-electron system. Even if it's 2 electrons, then also we consider it as multi-electron system. Now energy of such type of system, it depends upon the sum of n plus l value. N plus l value means the energy of the orbital depends upon the sum of principal and azimuthal quantum number values. So see the second point now. Within a given n, that means if you have the principal quantum number as maybe 1, 2, whatever, even if you consider, let us take it as n is equal to 4. N is equal to 4, again I am repeating. Then the energy of the orbital will increase in the order, see, in this order. So 4s will be lowest energy, then we have 4p, 4d and 4f. So when we are talking about particular energy shell, then 4f orbital will be of highest energy and 4s orbital will be of lowest energy. So for a given principal quantum number, the energy of the orbital increases in this order: s, p, d and f. Now see the next point.
higher the sum, suppose you have got n plus l is more. In one case, if you consider the case of 4s, I have written over here 4s. So what is the value of n? N is equal to 4 and s is equal to the value of l here will be 0. So for 4s case, n plus l value will be 4. What about 3D? 3D will be 3 plus 2, 5. So you can see that the energy of 4s is less than 3D. I hope this point is clear to you. When we are not considering the same value of n, for different values of n, the energy of the orbital depends on this factor. It depends upon the sum of n plus l value. Higher the value of n plus l, more will be the energy of the orbital. So I have taken up example here as 4. I have compared 4s with 3D. मैं 4s को 3D से कंपेयर कर रही हूँ और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3D की एनर्जी जो है वो 4s से ज़्यादा है. तो ऐसा क्यों है? इसी बेसिस पे है. 4s के केस में क्या हुआ? n प्लस एल की वैल्यू 4 ही हो गई, लेकिन 3D के केस में n प्लस एल की वैल्यू होगी 3 प्लस 2. तो 3 प्लस 2 इज 5. सो दैट इज वाई एनर्जी ऑफ 3D इज मोर देन 4s. Similarly, you see the second example. The second example is, look this one, 6s. 6s में n plus l की वैल्यू क्या हुई? 6 हो गई, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है. तो यहाँ पर 6s में n plus l की वैल्यू हो गई 6, लेकिन यहाँ पे 5D के केस में क्या हुआ? 5 plus 2, 7. तो इसलिए एनर्जी ऑफ 5D इज मोर देन 6s subshell. Now see the next point. If two orbitals have same value of n plus l, हाँ, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जिसकी भी n plus l की वैल्यू ज़्यादा होगी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा होगी. लेकिन अब क्या, जब दोनों की ही वैल्यू अगर सेम आ जाए तब क्या होगा? तब जिसकी भी n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है. यहाँ पे देखिए, आई हैव रिटन द पॉइंट. द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी. अगर दोनों का सम हमें बराबर मिल रहा है तो जिसकी भी अब n की वैल्यू पे एनर्जी डिपेंड करेगा. अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो वो हायर एनर्जी का होगा, और अगर n की वैल्यू कम है तो वो कम एनर्जी का होगा. नाउ सी द नेक्स्ट. अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? देखिए, द मेन रीज़न फॉर डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबशेल इज द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये पॉइंट को अगर आप कंसिडर करें, व्हेन यू कंसिडर दिस पॉइंट, मेन रीज़न फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबशेल, आपने हाइड्रोजन के केस में देखा कि सारे सबशेल की जो एनर्जी वैल्यू है वो n के वैल्यू पे डिपेंड करती है. लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आते हैं तो ऐसा रूल ये फॉलो नहीं होता. ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं. एक हो गया अट्रैक्टिव इंटरैक्शन और दूसरा हो गया रिपल्सिव इंटरैक्शन. तो अट्रैक्टिव इंटरैक्शन कहाँ पे हुआ? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में म्यूचुअल रिपल्शन. तो एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर टेकिंग प्लेस. One is attractive force between the nucleus and the electron, and another is repulsive interaction between the electrons. So because of these reasons, different orbitals have got different energy in a multi-electron system. But in case of hydrogen, सिर्फ और सिर्फ attractive interaction होता है. सिर्फ attractive interaction क्यों होता है? क्योंकि उसके पास, हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन की तो बात ही नहीं हो गई, सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन रहता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ. सो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो एज द इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन एटम्स और एलिमेंट्स, सो एज वी इंक्रीज, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ता जाता है. अगर आप ग्रुप 1 की बातें करें, ग्रुप 1 जो है आप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं. तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो एज वी आर मूविंग डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ता जाता है.
नंबर ऑफ शेल्स तभी बढ़ता है जब अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे भर जाएं। अंदर के शेल्स भर जाएंगे तब आउटर मोस्ट शेल जो है वो भरता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्लास 9th में भी पढ़ा है KLMN के टर्म्स में। तो द इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, किसी भी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन जिनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं। शील्ड करते हैं मतलब वो एक, जैसे आप देखो कि अब आप कार में जब आप ट्रैवल करते हो विंड स्क्रीन होती है, विंड स्क्रीन क्या करती है, विंड स्क्रीन आपको एयर के प्रेशर से शील्ड करती है, वो रोकती है। सिमिलरली इनर इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम के, वो न्यूक्लियर के अट्रैक्टिव फोर्स को शील्ड करते हैं और बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसको प्रॉपरली, उनके ऊपर इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता है। सो इसी को बोलते हैं शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। सी दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल्स, the electron in the outer shell will not experience the effective nuclear pull। ये देखिए, effective full positive charge of the nucleus, पूरा का पूरा इफेक्ट उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब वो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। The effect will be lower due to partial screening of the positive charge on the nucleus by the inner shell electron। तो न्यूक्लियस के पार्शियल शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके पार्शियल शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है या आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है। और इसी फेनोमेनन को बोला जाता है शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट होती है, शील्डिंग इफेक्ट हर ऑर्बिटल की सिमिलर नहीं होती है, अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग शील्डिंग इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने लिखा है पॉइंट, द Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एजोमेथल क्वांटम नंबर। यानी जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी 0 से 1 पे जब हम गए, 1 से 2 और 2 से 3 पे जब हम गए, तो जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ती जाएगी शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता चला जाता है। अब L की वैल्यू के ऊपर ही सब शेल डिपेंड करता है। तो यही चीज, इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट करके, ये देखिए मैंने इसी पॉइंट को लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ सब शेल। यानी S ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है। S ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं, इनका शेप भी स्फेरिकल होता है, जिसकी वजह से इनकी शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है। यानी S ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा शील्ड करेंगे और सबसे कम कौन करेगा? F ऑर्बिटल करेगा। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम S से P, P से D, D से F में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब शेल्स की साइज भी जो है वो बड़ी होती जा रही है। और इस साइज बड़ी होने के साथ साथ इस वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। See this point? Since the extent of shielding from the nucleus is different for electrons in different orbital, it leads to the splitting of energy level within the same shell। एक ही शेल के अंदर में स्प्लिटिंग हो जाती है। अब एक ही शेल के अंदर का मतलब क्या हुआ? 3p। अगर एक शेल यानी थर्ड शेल की हम बातें करें तो थर्ड शेल में आ गया मेरा 3s, 3p, 3d। आई होप इट इज क्लियर। एक ही शेल के अंदर अब हम बात कर रहे हैं, तो 3p, 3d, ठीक है, और उससे पहले 3s। तो जैसे जैसे अब आप देखो ये ऑर्बिटल सबशेल जो है वे वेरी कर रहा है, उसकी एनर्जी भी अलग हो जाएगी। सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम शेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने कंपेयर किया हुआ 2s ऑर्बिटल को, हम 2s ऑर्बिटल को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है एनर्जी जो है वो 2s ऑर्बिटल की डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एनर्जी 2s ऑर्बिटल की है डिक्रीज होती जा रही है। सो दिस पॉइंट्स द रूल्स यू शुड मग अप, और ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? ये आपको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अभी आपने देखा होगा एग्जाम पैटर्न भी डिफरेंट हो गया है, CBSE का भी एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। सो इट्स ऑलमोस्ट 50% objective type and 50% descriptive type. So in objective type of questions MCQs will be there,
रीजन असर्शन, सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड ये धीरे धीरे सीबीएसई जो है वो लेके आ रही है। तो यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर देम करेक्टली। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल, एक ही सबशेल में, इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ हम 2s सबशेल की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का 1, लिथियम 2, फिर ऐसे से जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये हमने ग्रुप 1 में कंसिडर किया है। देखो ग्रुप 1 में सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम, फिर सोडियम और ये पोटेशियम को कंपेयर किया गया है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो सेकेंड शेल की जो एनर्जी है, सेकेंड सब शेल दैट इज 2s की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती जाएगी, ये आपको याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी how to write down the electronic configuration. So the first rule is Aufbau principle. Aufbau word in German means to build up. So when we build up, we start from lowest to highest. Similarly, the rule says that when we fill up electrons in orbital, the electrons will be filled from lower energy shell to higher energy shell. So see this point that I have highlighted. In the ground state of an atom, the orbitals are filled in order of the increasing energy. So the increasing energy depends upon what factor? It depends upon the sum of n plus l values. So this is the end. You have to learn these things and it will help you. This trend, if you will learn, it will help you to write down the electronic configuration. So 1s orbital is of lowest energy, and as we increase the value of n, you can see that 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Now there is a discrepancy. After 3p it should be 3d, but we have got 4s over here. So this I have already told you that when we compare 4s with 3d, you know that n plus l value for 4s will only be 4, and for 3d it comes out to be 5 because 3 plus 2 is 5. So 3d is in higher energy in comparison to 4s. Again after 3d we have got 4p, 5s, 4d, and this trend is followed. So I will suggest that you learn this trend and it will help you to write down the electronic configuration. So when we fill up the electron, first 1s subshell will be filled. और आपको पता है कि एक सबशेल s सबशेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, p जो है वो 6 लेता है, d जो है वो 10 लेता है, and f takes 14 electrons. सो ये आपको याद रखना है। तो जब तक एक सबशेल कंप्लीटली नहीं फिलअप होगा, हम अगले सबशेल में इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाएंगे। सो व्हेन वी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ये 1s भरा जाएगा। सपोज यू हैव गॉट एनी सिस्टम दैट हैज़ गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप फिलअप करोगे यहाँ पे, तो पहले आप लिखोगे 1s2 ये कंप्लीटली भर गया। उसके बाद फिर लिखेंगे हम 2s में भरेंगे, तो 2s पे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 लेगा। सो अगेन वी विल राइट एज 2s2। अब ये 2 + 2 4 हो गए, फिर भी अभी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमेनिंग है, तो 5th इलेक्ट्रॉन विल गो टू 2p ऑर्बिटल। सो इफ यू हैव गॉट अ सिस्टम इन विच देयर आर 5 electrons, then the configuration for that will be 1s2, 2s2 and 2p1. So this rule says that when electrons are filled up in orbitals, they are done in increasing order. That means from lowest to higher energy state. Now the next one is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle says that no 2 electron in an atom can have all the 4 set of quantum numbers same. आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ऐसा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है किसी भी सिस्टम में जिसके चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम आए। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम होते हैं तो चौथा स्पिन जो है वो ज़रूर अलग होगा। सपोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम एज यू टेक इट एज, सपोज आप लेते हो n = 3, तो n = 3 अगर है तो l भी अगर 3 आप ले रहे हो, l3 कब होगा? जब l3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि l3 करने के लिए आपको f ऑर्बिटल होना चाहिए और f ऑर्बिटल 3 के केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। लेट अस टेक सम अनदर एग्जांपल। सपोज हम 4f की बात करते हैं। ओके, तो n हो गया 4, इस केस में भी
आप ये नहीं ले सकते हो। तो दे आर डिफरेंट, आप बस ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का करें तो अगर 3 किसी भी हाल में अगर सेम आ गया है तो चौथा क्वांटम नंबर जो है वो स्पिन अलग होगा ही होगा। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, सी दिस पॉइंट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप ऐसे भी 2 तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इसको स्टेटमेंट लिखने का ये है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। इसका opposite spin जो है वो होना चाहिए, यानी अगर एक का clockwise है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। we will see that when we write down the electronic configuration, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। अभी नेक्स्ट रूल जो है वो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को और कॉमनली अगर मैं आपको बोलूं तो ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम, आपको पता है कि p सबशेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, f सबशेल के 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी शुरू होगी जब सारा ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो जाए। ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है। सो सपोज आप 2p में भी इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो 2p में इट कैन टेक अप ऑफ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो सपोज आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल कर दिए तो तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे 2p के। अगर पहला 2px में गया है तो दूसरा 2py में जाएगा और तीसरा 2pz में जाएगा। और जब ये तीनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे तभी जो है वो पेयरिंग शुरू होगी। उसके पहले पेयरिंग ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपने 2px को पूरा भर दिया, फिर 2py में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए और फिर तब जाकर 2pz में दोनों इलेक्ट्रॉन डाले, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज। See this one, read it. Pairing of electron in the orbital belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to the subshell has got 1 electron each. That is, it is singly occupied. जब तक ये वो singly occupied नहीं होता है। So this is what it is. Now we will see that how electronic configuration is written. We will see some examples how the electronic configuration is written. So you look over here. Lithium has got 3 electrons. Atomic number of lithium is 3. So it will be 1s and 2s. This is 1s. यहाँ पे देखिए 1s ऑर्बिटल है, पहले 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, तब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में गया है। Then now we come to beryllium. Beryllium has got 4 electron. Atomic number beryllium का 4 है। तो पहले आप ये देखो, ये 1s ऑर्बिटल है, 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन भर गया और दोनों इलेक्ट्रॉन भी एंटी पैरेलल स्पिन होंगे, एक की क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने सेम बना दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सेम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। सो अगेन आफ्टर फिलिंग अप ऑफ 1s, यहाँ पे देखिए 2s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली भर गया, तो ये 2 + 2 4 हो गए। अब हमारे बोरॉन के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैंने आपको 5 इलेक्ट्रॉन केस के लिए बताया था। सो यू कैन सी दैट 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब ये 2p1 जब है ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बना दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। इट कुड बी ईदर द इलेक्ट्रॉन कैन गो टू 2px, 2py या 2pz। सबकी एनर्जी जो है वो सेम होती है, दे आर डीजेनरेट, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आए यानी 6th इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये पेयरिंग अभी नहीं होगी। जब तक ये कंप्लीटली हाफ फिल नहीं हो जाता 2p ऑर्बिटल तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती। यही है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यही हुन्स रूल बोल रहा है। सो यू कैन सी दैट इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया 1s2, 2s2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो 1s और 2s को मिला के भर गए। अब बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा। और ये देखिए आप 2p में, ये देखिए 2p में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, और फिर ये हो गया तीनों जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। एंड दिस इज व्हाट हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज। अब 7th इलेक्ट्रॉन के बाद जब 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो जब वो 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके बाद 2p की पेयरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो देखिए ऑक्सीजन में 1s2, 2s2 एंड 2p यू हैव गॉट योर 4। तो 4 में पहले तो ये हाफ फिल्ड हो गया और चौथा इलेक्ट्रॉन फिर ये पेयर हुआ। और उसके बाद फ्लोरीन के केस में देखिए 9 है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई।
और ये देखिए नियॉन के केस में ये कंप्लीटली फिल हो गया सारे ऑर्बिटल। सो 1s भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2s भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2p भी कंप्लीटली फिल्ड है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जब तक ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं होगा आप इसका पेयरिंग नहीं कर सकते, यही जो है आपको जानना है इस पार्ट में। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे, लाइक इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर देयर आर एक्सेप्शंस, तो उसका भी रीजन देखते हैं। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, सो आई विल सी द रीजन फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। Certain exceptions in electronic configurations are because of two reasons, that completely and exactly half filled orbitals are extra stable, they are more stable, कुछ extra stability आ जाती है। तो क्या रीज़न है कि completely और exactly half filled orbitals जो होते हैं वो बहुत stable होते हैं? तो पहला रीज़न तो यहाँ पे देखिए symmetrical distribution of electron। तो exactly half filled भी जब होता है, ये देखिए हमने एक किसी d ऑर्बिटल का इमेज है और d सबशेल हैज़ गॉट 5 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सो दिस इज अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट। सो बिकॉज इवन इफ इट इज 3d5 और 3d10, ये 3d5 उन्होंने दिखाया, 3 तो नहीं d5 का है, आई एम सॉरी 3 नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि n की वैल्यू क्या है। तो सपोज ये एक d5 अरेंजमेंट है, तो d5 अरेंजमेंट आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, और यही अगर d10 भी होता एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो पहला रीजन तो है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द सबशेल इज extra stable. Second है exchange energy. So exchange energy, so in exchange energy you can see that when the electrons can exchange their places within the same subshell, so ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कि कहीं पे भी ये जा सकता है, ये different possibilities है। उसके बाद 3 exchange by electron 2, ये second electron जो है उसने 3 जगह exchange किया। यहाँ पे देखिए 4 exchange by electron 1, ये electron 1 है, इसके लिए 4 possibilities हैं। तो जब symmetric arrangement होगा तब इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज भी इजीली होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इजीली अपनी पोजीशन को कर पाता है, सो एनर्जी इज रिलीज्ड इन दैट केस। सो सी दिस पार्ट, the stabilizing effect arises when 2 or more electrons with the same spin are present in degenerate orbital. These electrons tend to exchange their position, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और ये चेंज इन पोजीशन तभी होगा जब इनकी स्पिन जो है वो सेम हो। क्लॉकवाइज स्पिन वाला क्लॉकवाइज के साथ कर सकता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के साथ कर सकता है। तो जब भी ये एक्सचेंज होगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब ये वाला पॉइंट आपको देखना है, द नंबर ऑफ exchanges that can take place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability. So stability हो आता है, और इन दो रीजंस की वजह से exchange energy